Namaste and welcome to Organizer. And today we will talk about one of the most heated controversies in India's digital entertainment space today. A single offensive question has sparked an uproar that goes far beyond the individuals involved. It has reignited a debate about the responsibilities of stand-up comedians. It has also raised questions on the role of social media influencers, the legal and moral boundaries of free speech, and whether India's digital platforms need more regulations. Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत. Or would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई माइंड ब्लोइंग आती है. What a question, मेरे को भाई. लगता था वो तो एक्ट करता है ये वो. This controversy began with an episode of India's Got Latent, hosted by the stand-up comedian Samay Raina, and one of the panelists there, Ranbir Allahabadia, popularly known as Beer Biceps, posed a vulgar question. The panel laughed about it, the episode went live, and social media did what it does best. The incident was condemned by everyone: viewers, social commentators, journalists, and even legal experts. The matter escalated beyond public outrage. An FIR was lodged against both Samay and Ranbir, which has divided the netizens. A section of society is calling the statement made by the comedians offensive, and some are terming it as a dark humor, also calling it as a right of freedom of speech and expression. Nevertheless, now that controversial episode has been taken down after centre's order, but this controversy has raised questions about India's evolving digital landscape. Where do we draw the line between humor and offensiveness? To discuss this, we have with us senior lifestyle journalist and film critic Sarmi Adhikari, political satirist Ritika Chandola, and satirist Ajay Tandela ji, who will weigh in on whether this incident is a wake-up call for online content creators. Welcome to Ajay ji, Ritika ji, and Sarmi ji. You all are aware of what's going on for the last 2 days in media about the controversy related to Samay and Ranveer. Yeah. I want to start with Ritika ji. Ritika, how do you see this whole controversy? Namaste to all, and thank you for having me in this program. The particular controversy has led all the people in shock because of the image that was created of Ranveer Allahabadiya, and also to those people who used to admire him. And after seeing the entire program of the latent India's latent show, so it has at least given an image to everyone and has at least given a clarification about the shows that are going these days, and also that what people are following on social media and everywhere. So I asked someone, I was not knowing about the show, and recently got to know कि ऐसा कुछ हो रहा था. So I asked one of my friends that where does the show runs? So they told me on the YouTube. I thought it was there on some Prime or something, but it was not there. Because usually what happens that Netflix and such OTT platforms show these types of programs, but mostly on YouTube we see the censored programs. And on this particularly, what is the main thing that the youth these days are more involved in watching these programs. We see that they get more often the viewership, and they're earning to the best. I mean, we are seeing so many strugglers in the field of YouTube content making and reel making, but mostly what we see is that this type of content is getting circulated, and most of the people are enjoying it because the particularly uh, jokes or the this humorous thing has taken a different kind of route these days. Ever since we have been watching the sacred games type of programs, or Yes. maybe some series like this, they have created that gali galoj wala scene as a very humorous thing. I mean, recently, because I am a youth, so I do hang out with people with different people. So what happens is, Mano, that I have random people around me, and there's one Punjabi guy. So we have that scenario in our mind that if a person is a Punjabi, he is funny and he has to be humorous and he has to create that aura of humor. So I was hanging out with the one, and uh, uh, initially things were like normal. So I wasn't talking to anyone, and things were very normal. So they thought to open me out. They started these conversation of abusing because they didn't know that what type of a person I am.
But I was like, why do you always have to start a conversation with an abusive language or something which is Hmm. foul? There can be normal conversations like we are Hmm. talking, or the very initial formal conversations. And it is so shocking to know that even like many of my knowns do watched this show, India's latent show. So they used to talk about this, and I used to ignore because it was not there in my algo of Instagram or YouTube. It was not there because now it is there because of the news. But Hmm. before this, it was not there. And now, recently, when this controversy started, it was so shocking to know that people around them are enjoying, they're roasting, and they're using the most foul language related to family members, related to their personal body appearances. In fact, I saw one episode in which a person was, on wheelchair, and they were making fun of him. And it is so sad to see that in society we have become so heartless, we have become so emotionless seeing all this. And today's memes, when we see someone does not have one hand and is not fine by the appearance, and there are memes on this. People make fun of all this, like previously we used to see people who are begging on the streets and they don't have one leg or one hand or anything like that for matter. We used to Ritika, but if we see that society or social media is divided into two parts on this whole issue. एक इसको वन इज कॉलिंग इट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके तहत आप कहते हैं कि कॉमेडी को अलाउ होना चाहिए, एंड द सेम पीपल कॉलिंग इट कि ये डार्क ह्यूमर है, इंडिया के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो समाज कहीं ना कहीं बटा हुआ है। तो हाउ डू यू सी दिस कि कॉमेडी कब आप कह सकते हैं बदतमीजी बन जाता है, कब किसी का उपहास उड़ाने लग जाता है, कब किसी को ठेस पहुंचाने लग जाता है? हाउ डू यू सी दिस थिन लाइन क्रॉसिंग? या देयर इज अ वेरी थिन लाइन। आप देखिए, रणबीर अलाहाबादिया का अच्छा खासा करियर चल रहा था, यही या थिन लाइन उसने क्रॉस की। ही मेड अ फन ऑफ हिज ओन पेरेंट्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड द चाइल्ड इन अ हाउस। व्हेन यू हाँ, स्टार्ट वी से ना कि माता-पिता का जो संबंध होता है वन ऑफ द प्योरेस्ट, जो बच्चे और माँ का जो संबंध होता है। इंडिया में तो कहीं न प्योरेस्ट, कहीं या इंडिया में तो प्योरेस्ट है, यहाँ की संस्कृति के अनुसार वैसे ही हम लोग रहते हैं। यू कैन So जॉइन। there are many accounts like Shamira Singh. He's taking a stand on this that he's my friend and I have to take his stand, और ये freedom of speech है, हम कहीं पर भी बोल सकते हैं इसके बारे में। freedom of speech है तो कल के दिन क्या स्कूल में बच्चे को खड़े होकर ये सब बोलना अलाउ करोगे? कल के दिन अगर कॉलेज में एक बच्चा बैठा है, वो अपने टीचर को ऐसी चीजें बोल सकता है, ये सोचने वाली बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, यहाँ तक कि एक जानवर को भी अपना बोलने का अधिकार है, उसके खुद की राइट्स है, राइट्स सबके हैं। हुँ। लेकिन फ्रीडम्स दी गई हैं ताकि आप एक फाइन लाइन के साथ रहकर उस चीज को आगे बढ़ाएं। तो बहुत सारे ऐसे अभी मैं ट्विटर में भी देख रही हूँ, और जो इनकी साइड ले रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बी अ फ्रेंड टू हिम, दे आर ट्राइंग टू टेक हिज साइड, ताकि उसका जो बोला गया जो भी प्रीवियस हिस्ट्री है वो क्लियर हो जाए। लेकिन आप साइड लेके अपने ही जो सोशल में आपकी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप उनको फिर से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि वो ये स्टेप लें। तो अगर श्याम मीरा सिंह जैसे लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं तो समय रैना का समर्थन करूंगा, उसने अगर बोल दिया तो आपको नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना हुँ, चाहिए तो यूट्यूब ही मत डालो ना। हुँ। इट्स So, एन एल्गो। Sarmi, हाँ, Sarmi, there have been debates about regulating the contents, whether it is on OTT, on social media, or YouTube. How do you see this? Will the regulation of the content help anything? See, the problem is that there's so much of unrestricted content on social media that and that our children, that are that our youngsters are being privy to a lot of unmonitored stuff now, with the internet becoming free and there's so much happening on social media, and on OTT platforms. They are also being exposed to a lot of mediocre stuff. Now, if you ask me, most of the stand up comedy that is happening in India or on all these shows,
it's very mediocre. Means if you if uh, in the name of being cool, or in the name of being up smart, and freedom of speech, a lot of grotesque humor is going, and then a lot of mediocre stuff is going. Now I think that has given rise to a lot of mediocrity. People are laughing at nonsense stuff. Stuff that is not funny, stuff that is not witty, stuff that is boring. But somehow the unregulated content on social media and on OTT platforms has channelized a sort of youngsters to feel that, okay, everybody's laughing, so this must be funny, so let's laugh. This whole herd mentality. So, but I think there needs to be some kind of regulation that teaches the youngsters that, look, this is not funny, or this is not good stuff, or this is not wit or humor can be classier, it can be smarter. I am not saying that there shouldn't be sexual jokes. Sexual jokes have always been there in the mainstream, but they can be a little classier. There can be a fine line between decency and sensuality. As I always say, sexual doesn't have to be gross and dirty all the time. They can be sensual, and they can be funny also. But what is happening in amongst all this availability, there's so much available now, and there's so much mediocre stuff available, that we have forgotten the fine line between classy stuff and mediocre stuff. तो जब भी अभी you said कि classy होना चाहिए, तो who is going to decide कि this is classy, this is vulgar? ये we are talking about the fine line कि हमें, who is going to decide this? I think exposure to the right kind of content. There has to be some kind of guidance, parental guidance. There are, OTT platforms have good programs also. It's not just bad stuff. There are a lot of good programs, and parents must, I think, they must step in to, to decide or guide. I'm not saying decide. They should not helicopter around their children. These are young people. There's so much of exposure now. They're exposed to everything at the click of a button. But I think there should be some kind of guidance to tell the children that, look, this is also available. Why don't you watch this also and decide that whether this is better, or you're finding this better. But also the world has become so open now, everything is out there, that it is a challenge. Maybe like the government should form a body that will regulate the content. Maybe they should, because there's so much of bad stuff available on social media, which are impacting the children. Of course, 100%. Means, as a parent, I am very, very worried what my son is being exposed to. Means, under peer pressure, he might feel that, oh, my friends are watching this, and I should be, I should also watch it, because I need to participate in the conversation that is happening in class. Even you are not liking it, but to be a part of that certain group, that circle that discusses a particular Squid Game or a particular something. Now, as a parent, what I can do is I can tell him that, look, you are watching Squid Game, it's fine, but always remember that is not the reality. Things don't happen like that. It's just an illusion created. It's just a game. It's really silly. Things don't happen like that. You need to come out of it and don't take it too seriously. You can, you can discuss with your friends, but you also watch Bandish Bandits, because it's better content. It's well made. It has a lot of, you get to learn about a lot of values, about personality, about character, about hard work. So parents must step in to decide. Means, you can't just let these youngsters lose, saying that,
let them do whatever and they'll understand. No, this is a foundation stage. You have to build a foundation in a certain way that when they grow up, they are able to understand that this is right and this is wrong. Why do you think college, a lot of students in college move to, gravitate towards drugs and substance abuse and alcohol and cigarettes? Because of this, because there is the foundation. उनको बोला नहीं गया है that this is bad. And why is it bad? It is bad because of this. It is bad because of this. In moderation, there is nothing called moderation and all this substance abuse and alcohol. You have to tell them from before. The foundation needs to be solid. Ajay ji is with us now, and Ajay ji, you are into this profession, and you know the writing, script writing, satirist के लिए लिखना, stand-up comedians के लिए लिखना. अलाहाबादिया ने अभी एक सॉरी वीडियो रिलीज किया जिसमें उसने कहा कि मुझे नहीं पता था इसमें ऐसे होता है तमाम चीजें, और उसने माफी मांगी है. देयर इज अ सेक्शन जो कहता है एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड, उसका रिहर्सल होता है. हाउ ट्रू इज दिस? क्या है ये, मतलब जो पर्दे की पीछे की कहानी जो मंच पे आता है? आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. देखिए, मंच वगैरह के लिए मैं नहीं लिखता हूँ. मैं सटायरिस्ट हूँ. मैं व्यंग वगैरह लिखता हूँ सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर. कुछ किताबें भी लिखी हैं. लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कितना स्क्रिप्टेड होता है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती होंगी. उसका एक कारण ये है कि देखिए, आप जो भी मंच पर कह रहे हैं वो आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कहते हैं, या बिना उसको सोचे समझे नहीं कहते हैं. इस केस में भी ऐसा कुछ होने की बहुत संभावना है. मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा, लेकिन एक चीज और है, कंटेंट क्रिएट करना, या आप जो सटायर और कॉमेडी की बात करते हैं, तो सटायर और कॉमेडी तो अलग अलग चीजें हैं. सटायर में एक उद्देश्य होता है. आपकी कॉमेडी का उद्देश्य केवल क्या है कि किसी को, सामने वाले को हंसाना. अब कॉमेडी ने यहाँ पर दो तरीके से रूप बदल ले लिया है. एक तो जो ट्रेडिशनल कॉमेडी थी वो पीछे बैक स्टेज में चली गई है, बहुत कम देखने मिलती है. अब जो कॉमेडी आ रही है, ज्यादातर वो कॉमेडी होती है किसी को रोस्ट करने की या किसी की इंसल्ट करने की. तो जो इंसल्ट को कॉमेडी समझने लगे हैं, इसमें कॉमेडी करने वाले नहीं, कॉमेडी सुनने वाले और उसको पसंद करने वाले लोग भी उतने ही दोषी हैं. अब बात यहाँ पर आती है कि क्या ये लोग जानबूझकर इस तरीके से गाली गलौज या इस तरीके की बातें करते हैं. तो देखिए, कंटेंट क्रिएट करना या किसी भी तरीके का व्यंग करना कोई रोज का काम नहीं होता. ये ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह उठेंगे, आपके दिमाग में एक व्यंग आ जाएगा या आपको एक पंच आ जाएंगे. तो होता क्या है कि ज्यादातर लोग, मुझे लगता है, बहुत पढ़ते नहीं हैं या चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते जैसे पुराने लोग करते थे. चीजों को ऑब्जर्व करते और आसपास के लोगों में से पात्र नहीं ढूंढते हैं. वो एक अपनी ही वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं. अब होता क्या है कि वर्ड्स जहां कम पढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एक गाली दे दो, ये पंच बन जाएगा और इससे कॉमेडी खड़ी हो जाएगी. तो उनके पास वोकैबुलरी की कमी होना भी एक कारण है जो इस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहा है और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं. तो जो एंजॉय करने वाले लोग हैं वो भी उतना ही दोषी हैं. आपकी बात से मैं सहमत हूँ. जावेद अख्तर जी को मैं कहीं सुन रहा था तो उन्होंने भी इसको लेकर के बहुत पहले अपना एक पक्ष रखा था कि जब आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होता है, जब आपके पास शब्द नहीं होते हैं, तो आप गालियों से उसको फिल करते हैं. एज अ फिलर आप उसको गालियों की तरह यूज करते हैं. राजू श्रीवास्तव जी जैसे भी लोग हमने देखे हैं जो ट्रैवल के दौरान अपने स्क्रिप्ट तैयार कर लेते थे, कोई कैरेक्टर ढूंढ लेते थे. लेकिन ये जो पिछले 2 दशक में जो बदलाव हुआ है, खास करके जो AIB के आने के बाद, AIB आया तो अब भी कंट्रोवर्सी हुई थी, तन्मय भट्ट और ऐसे लोग जो थे, और एक बार फिर से ये बीच में एक कह सकते हैं कंट्रोवर्सी नहीं हो रही थी, लेकिन ये अभी फिर से एक इस लेवल पे चला गया कि दोबारा से एक कंट्रोवर्सी हुई है. तो ये जो 2 साल की जो जर्नी है, जो कह सकते हैं आप कॉमेडी की ही मैं बात, जो द सो कॉल्ड डार्क ह्यूमर है, इस बदलाव को क्या देखते हैं? मतलब देखिए, ये सब जो शुरुआत हुई है ना, ये सिर्फ AIB से मत शुरू देखिए, इसको देखिए. जब से हमने टीवी पर MTV रोडीज वगैरह जो आते थे उसको एक्सेप्ट किया, तो उसने क्या किया, देखिए कोई भी चीज अचानक नहीं होती है.
आपने वो मेंढक वाला उदाहरण सुना होगा ना, कि मेंढक को एकदम गर्म तवे पे डाल दो तो उछल जाएगा, धीरे धीरे करते डालते जाए तो वो सहता जाता है। तो वो एक टेस्टिंग होती है उसकी कि कितना सहता जा रहा है। तो एक पहले कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी हुई जिसमें थोड़ी बहुत वल्गैरिटी आई, थोड़ी बहुत गालियां भी आई, थोड़े इनडायरेक्ट रेफरेंसेस भी आए। जब सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उससे ऊपर की एक चीज लेवल पर आई, जब हमने एमटीवी रोडीज को टीवी पे आने दिया, हम मतलब उसको एक तरीके से एक्सेप्टेंस मिली, तो लोगों की और हिम्मत बढ़ी और उन्होंने फिर एआईबी जैसे प्रोग्राम शुरू किए। उसके बाद जो रोस्टिंग वाला काम शुरू हुआ और इंसल्ट वाला काम शुरू हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अब लोगों को ये लगता है कि इंसल्ट करना ही डार्क कॉमेडी है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने जाने भी दो यारो जैसी मूवी देखी होगी, वो एक डार्क कॉमेडी में बेस्ट एग्जांपल है। उसमें कहीं भी वल्गैरिटी नहीं है उस मूवी में, लेकिन आप देखेंगे कि दैट इज मेकिंग अ जोक ऑफ समथिंग दैट इज एक्चुअली सैड। वो हंसने की बात नहीं, लेकिन आप उस सिचुएशन में से, जो सिचुएशन बहुत ही बुरी है, उसमें से हंसी निकाल के ले आते हैं। तो डार्क कॉमेडी वो है, ये नहीं है कि आपके पास शब्द नहीं पड़े तो आपने गाली दे दी, वो एक कॉमेडी सीन बन गया। वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक उसका फॉर्मेट देखे तो कभी कभी हम लोग भी रील्स के माध्यम से देख लेते हैं, तो जो 4-5 प्रोमिनेंट चीजें हैं कि एक तो आप जो दर्शक दीर्घ है उसको गाली दे दीजिए, अपने माँ पिता को इन्वॉल्व कर लीजिए, रिलेटिव्स को इन्वॉल्व कर लीजिए, उनका मजाक उड़ा लीजिए, गाली गलौज कर लीजिए। तो यही एक बेसिक फॉर्मेट उन्होंने बनाया। रितिका, आई वांट टू आस्क यू कि क्या वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में, क्योंकि हमने देखा कि जो रणबीर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पहले दिया जा चुका था, तो सिर्फ वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में हम लोग ये ब्लंडर्स कर रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट देयर सोसाइटी एंड आवर सोसाइटी एंड वी आर जस्ट ब्लाइंडली कॉपिंग इट। तो उस चक्कर में ये गलतियां, इस तरीके की गलतियां हो रही है। हो सकता है कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस इन कंटेंट क्रिएटर्स पे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे द थिंग इज कि अब सोशल मीडिया इज नॉट लिमिटेड टू वेस्ट। वैसे कि ये गेट रेडी विद मी आता है जिसमें लड़कियां कपड़े बदलती हैं, लड़के कपड़े बदलते हैं। सो it is actually the audience which is consuming all this and is motivating content creators कि हाँ आप ऐसा करिए। रणवीर अलाहाबादिया ने जो वहां पे कहा, इट वाज सिमिलर टू दैट वीडियो जो हम सबने देखी। तो ये तो लगता है कि उनको वो चीज याद थी तो उन्होंने वहां पे बोल दी, जस्ट टू क्रिएट अ ह्यूमर। उस व्यक्ति की इमेज अभी तक पॉडकास्ट के जरिए बड़े बड़े लीडर्स के साथ जो उन्होंने पॉडकास्ट किए, उसके बाद तो अच्छी इमेज बनी और लोगों ने उनके पॉडकास्ट भी देखे और काफी कुछ, मतलब ठीक है, उस समय तक एक क्यूरियोसिटी जो थी पॉडकास्ट को देखने की वो उन्होंने बनाई। लेकिन उसके बाद जाके एक सेकेंड में आपकी जो छवि बनी होती है इतने समय से, वो एक पल में गिर जाती है, जस्ट टू बिकम दैट कूल पर्सन, बिकॉज often it can be that he is young, so he just got influenced। जो उनके अगल बगल बैठे हुए थे, समय रहना थे वहां पे और ये सब थे। so sometimes it also happens कि हम लोगों को भी अगर जोक मारना है तो हमें लगता है हम कूल बने, वो वाला जोक मारते हैं यार, जो वो वाला था ना हमें पसंद आया, हम अभी मारते हैं, इसको सुनाते हैं, वो जो जोक है वो शायद पसंद आ जाए हमारी ऑडियंस को। सो इन दैट केस वेस्ट डज हैज एन इन्फ्लुएंस, बिकॉज जो ये सारी चीजें स्टैंड अप कॉमेडीज या ये सब है, ये सारा जो चीजें हैं ये वहां से ली गई है। लेकिन जो जोक्स है वो तो हम हिंदी में मार रहे हैं ना, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारा तो हिंदी में कर रहे हैं। इनफैक्ट आई ऑल्सो डिड 2-3 satires, one on Mahua Moitra, one on Sonia Gandhi. That went very quite viral also, the Mahua Moitra wala. Yes, and she too commented on that. That means कि वो digestible भी था and it was उसमें कोई गाली देने की जरूरत नहीं पड़ी। It was easy and it was accurate, जो मुझे लोगों से सुनने में आया। It was accurate, it was humorous and GRWM can be this way also। तो वो एक मेरा नजरिया है जो मैं दिखाना चाह रही थी। आपको बस कपड़े ही नहीं बदलने, आपको बस अपना बदन ही नहीं दिखाना है स्क्रीन के सामने। You can be in this कि आप लोग GRWM करो। एक दिल्ली की लावण्या वाला भी I do sometimes। तो GRWM को हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा समझाएंगे प्लीज, बिकॉज so many people are new है। हाँ, GRWM वो स्लैंग है उसके लिए, वैसे उसका फुल फॉर्म है गेट रेडी विद मी। गेट रेडी विद मी मतलब कैमरा होता है और 60 सेकंड में इंसान कपड़े बदल के दूसरे कपड़े पहन रहा होता है और अलग अलग वीडियोस में आपको अलग अलग अंग दिखते हुए भी नजर आ जाएंगे।
लोगों के, जो लोगों को लगता है कि कूलर असल में उसमें लाखों और मिलियन व्यूज आते भी हैं। तो ये So कारण can we say it is मतलब it is like easy money kind of thing that youths are getting attracted towards it? मुझे लगता है मनी नहीं, एक्चुअली फेमस होने के जरिए होते हैं, जिसमें लोग पहले फेमस होना चाहते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया है, तो सो आई गेट ये 10-10 हजार के फोन भी सबके हाथ में है ही। चीपेस्ट ऑफ फोन्स भी अच्छी क्वालिटी आज की डेट में देते हैं। तो हर दूसरा बंदा बस फेमस होना चाहता है, वो चाहता है कि कैसे उसकी 1-2 वायरल हो जाए रील्स और वो फेमस हो जाए। पैसा तो बाद में आता रहेगा। अभी हमने एक बार उदाहरण देखा था, वो सिंगर रानू मोंडाल जो आई थी हिमेश हाँ रेशमिया, है ना। उसके बाद धीरे 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 उस पे भी कंट्रोवर्सी आई। रोडीज में नेहा धूपिया ने एक बार किसी को कुछ बोला था, बहुत उसमें फ्यूरियसली उसमें बोला हुआ था कि माँ के ऊपर कमेंट किया था या बहन के ऊपर कुछ कमेंट किया था, वो भी फेमस हो गया। मतलब बेसिकली जो सोशल मीडिया आज की डेट में है, जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना पैसे के भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे शायद लाखों में व्यूज आते हैं, हो सकता है वो पैसे ना कमाते हो, लेकिन वो कंटेंट मोर एंड मोर वैसा लाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग और फेमस हो पाए। सो बेसिकली अगर हम रणवीर अलाहाबादिया की भी लाइफ जर्नी देखें, उन्होंने तब स्टार्ट कर दिया था जब इन्फ्लुएंसर्स आना स्टार्ट हुए थे। सो इनिशियली ही यूज्ड टू मेक वीडियोस ऑन बॉडी बिल्डिंग, कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़ों में प्रेस करना है, कैसे चम्मच उठा के मुंह में खाना डालते हैं, ये सब वो बनाते थे। और धीरे 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 व्हेन ही गॉट टू नो, ठीक है अब मैं इस फील्ड में जमने लग गया हूँ, ही स्टार्टेड द पॉडकास्ट। हो सकता है कि वो वैसे हो और सामने कुछ और दिखते हो, सामने बेचता इंसान कुछ और हो, कि वहां पे वो धार्मिक अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर वो साइंस पे अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों से भी इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि 4 दोस्तों के बीच में आप कोई ऐसी चीज सोशल मीडिया पे बोल देते हो, वो आपको बैकफायर कर दिया है। एक दिन में आपका करियर डाउन हो गया, हर दूसरे इंसान से आप वही चीजें सुन रहे हो सोशल मीडिया पे। सो आई गेस दीज गेट रेडी वीडियोस और बी इट सोशल मीडियाज इन्फ्लुएंस, ये सारे लोगों को बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर रहा है। इनफैक्ट आज के मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी कि 6th क्लास के बच्चे, मोस्टली नॉट ओनली 6th क्लास, 5-6 साल के बच्चों की जो मम्मियां भी हैं, सॉरी टू से, लेकिन वो बच्चों को गेट रेडी विद मी सिखा रही हैं। 5-6 साल के बच्चे गेट रेडी विद मी कर रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू से ABCD क्लियरली, या उनको कलर्स का नहीं पता है, उनको वॉशरूम किस टाइम पे जाना उसके लिए मम्मी पापा ले जा रहे हैं, बट दे नो गेट रेडी विद मी, दे नो व्हाट इज ट्रेंडिंग। तो ये जो ट्रेंड के साथ अपने बच्चे को बना देना, लेकिन आप सही में वो संस्कार भूल जा रहे हो। आप ये भूल जा रहे हो अपने बच्चे को क्या बना रहे हो। सो बेसिकली इट इज कि जो मैम ने बोला था ना कि इट इज ऑन द वैल्यूज, तो एक तो वो वैल्यूज सोशल मीडिया की वजह से वैसे ही हट गई हैं। और आज की डेट में सारे बच्चों को दे आर वेरी मच एक्सपोज टू ऑल दीज कंटेंट, जो कि यूट्यूब से रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, जो कि OTT से रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हर घर पे है ऑलमोस्ट। टेलीविजन पे, तो टेलीविजन पे अगर वो बच्चा बटन दबाएगा, चाइल्ड लॉक भी क्या होता है, वो पहले वही दबाएगा, वही कंटेंट खुलेगा, उसको वहां पे पोस्टर में दिखेगा, अच्छा ये सीन है, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये देखने में, वो खोलेगा और फिर वो अकेले में खोलेगा जब मम्मी पापा घर से बाहर जाएंगे। सो दैट इज द थिंग, यू हैव टू थिंक कि कंटेंट कैसे आगे जाना है, कौन सा स्ट्रीम किस चीज के लिए है। इफ वी नो दैट एक बालाजी का ही एक और फील्ड है जिसमें वो पॉर्न टाइप की वीडियोस डालते हाँ, हैं, उल्लू, Baलाजी। there is a platform called उल्लू। Okay. या समथिंग लाइक दैट उनका है। हाँ। तो एटलीस्ट वी आर अवेयर कि ये वाला प्लेटफॉर्म इसके लिए ये नहीं देखना है, राइट। नाउ नेटफ्लिक्स हैज चिल्ड्रन, देन योर पर्सनल अकाउंट, देन व्हाटएवर, लेकिन बच्चा उस पे जाता ही जाता है। इट इज सो इजी टू एक्सेस। सो ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया ने बना दी हैं, बी इट रणवीर अलाहाबादिया का भी 2-3 पॉडकास्ट है जिसमें उसने ऐसे ही कुछ भी बोला हुआ है। तो ये जो कंटेंट था, अगर समय रैना के यूट्यूब से भी जा रहा था, दे कुड हैव एक्सक्लूडेड दैट पोर्शन। इफ ही नोज कि ये TRP नहीं लगेगा, ये इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, तो ये हटा देना चाहिए था। तो ये सारी चीजें लेकिन भी वो उन्होंने सोच, ऐसा नहीं किया ना, क्योंकि पता है कि जो ऐसी चीजें पहली बार नहीं हुई है, कह सकते हैं। वो जो हम लोग कह रहे हैं कि वो पिच तैयार, जो अजय जी कह सकें कि धीरे धीरे हमने उसको फीड करना शुरू किया और आज इस लेवल पे, तो उन्हें भी पता था कि युवा जो है, यूथ जो है, कैसे कंटेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसीलिए शायद उन्होंने ऐसा बोला। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका राजनीतिकरण हो गया है और नाउ द पॉलिटिकल पार्टीज इनटू इट।
असम गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने इस पे एक्शन लिया है. नाउ द बीजेपी इज स्पोक्समैन आर सेइंग, कमेंटिंग ऑन इट आल्सो. तो आप क्या इसका राजनीतिकरण होना अच्छी बात है, या ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको ही ये समझना होगा कि हमें किसको कितना लेकर जाना है, कितना बोलना है, ये चीज हमें खुद तैयार करनी होगी, या फिर ये डंडे से चलेगा? देखिए, ये डिमांड बहुत पहले से है, अभी से नहीं है या इस कंट्रोवर्सी से नहीं है, बहुत पहले से ये डिमांड है कि जो भी वेब सीरीज या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट है या यूट्यूब पर जो भी कंटेंट है, उस पर थोड़ा-सा कुछ सेंसर तो होना चाहिए। ये डिमांड मेरे ख्याल से जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसके पास बहुत पहले से जा रही है। तो कुछ ना कुछ तो इनको करना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो अभी 1000 लोग पोस्टर्स लेके खड़े हो जाएंगे कि हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अटैक हो रहा है। तो एक गवर्नमेंट वहां पे हेजिटेट कर रही है ये चीज करने में, जबकि ऐसा है कि कुछ ना कुछ एक इनको मीडियम लगाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर देखिए, सोशल मीडिया पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। आप कंटेंट को बैन नहीं कर सकते। वीपीएन का टाइम है, कोई भी कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है, तो आप वो बैन नहीं लगा सकते। ये चीजें आपको प्लेटफॉर्म्स पर ही छोड़नी होगी। प्लेटफॉर्म्स इन द सेंस, जैसे कि रितिका कह रही थी कि आप हॉटस्टार उठा लीजिए, आप जियो सिनेमा उठा लीजिए, आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, उसमें बच्चों के कंटेंट के बीच में आपको ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे देखते हैं या देखें। तो उस चीज को हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं ले सकती। उसको हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को बनाने वालों को या इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाले को। गवर्नमेंट एक सेंसर बोर्ड बिठा देगी तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर गवर्नमेंट पर कर पड़ेगा। अब इसकी जो चीज है, वही मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो सोशली आना चाहिए। ये गवर्नमेंट करेगी तो कर भी सकती है, लेकिन सोशली जब तक इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, ये चीज सॉल्व नहीं होने वाली है। अजय जी, अगर हम लोग देखें, अपने समाज की ही बात करें, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो पीपल कंपेयर इट विथ द अब्यूजिंग लैंग्वेज वी यूज इन आवर डेली थिंग्स. लोग बनारस का उदाहरण दे देते कि वहां तो ऐसे ही गाली दी जाती है. बिहार यूपी का उदाहरण ले लेते हैं कि वहां शादियों में गाली बकी जाती है. तो उन लोगों के लिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप कि ये जो है वो एक तरीके से ठीक है और ये गलत है? देखिए, ठीक है नहीं ठीक है वो चीज, आप देखिए, आप कुछ चीज आप कंटेंट बना रहे हैं, मतलब या कुछ लिख रहे हैं, तो आप वो मंच पर बना रहे हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंचे। अब आपके घर में कोई निजी समारोह हो रहा है, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, मुझे मालूम है हमारे यहाँ शादी में गाली की परंपरा है। शादी के समय रात में गालियां वगैरह वो एक परंपरा है, वो लेकिन वो वहीं खत्म होती है। उसकी कोई रिकॉर्डिंग करके ये नहीं पब्लिश करता है कि मुझे दुनिया को दिखाना है, या उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। आप किसी भी जगह देख लीजिए, आपको कहीं भी शादी के इतने वीडियोस आते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। मुझे तो नहीं मिली आज तक, और मिलती भी है तो उसमें भी बड़े ही कुछ कुछ बहुत ही स्पेशल टाइप के कुछ गाने होते हैं जो जो माफी मांगने वाले भी होते हैं, उसमें गाली देने वाले भी होते हैं, माफी मांगने वाले गाने भी होते हैं। तो वो एक अलग परंपरा है। वो हम ये नहीं कह सकते कि वो सही है गलत है। कुछ परिवारों ने इस चीज को छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे परिवार करते हैं, ज्यादातर परिवार इस चीज से हट चुके हैं। अब ये परंपरा भी लुप्त होती जा रही है। तो अगर मैं एक अपने अनुभव से बताऊं, तो हमारे परिवार में ज्यादातर लोग गांवों से शहरों में इसलिए भागे कि गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां पे जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो ठीक नहीं थी। तो गांव के लोगों को बोला जाता था कि गंवार हैं, ये ढंग से बात नहीं करते, इसलिए हम शहर के परिवेश में जाते हैं जहां पर लोग अच्छे से बात करते हैं, सभ्य तरीके से बात करते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, शहरों में वही चीज फिर आ गई है, घूम के और बड़ी होके आ गई है। स्कूलों में आप कितने भी बड़े इंग्लिश मीडियम में, कितने भी बड़े कॉन्वेंट में चले जाइए, आपको बच्चे वही करते हुए मिलेंगे जिससे बचाने के लिए। F word is very common these days कि मतलब just to show yourself cool, you keep on using this word in your मतलब daily routine things. मतलब every second line I have seen children, they are using it मतलब quite normally.
हाँ, वो उनका उनका सेंटेंस पूरा नहीं होता। कई ऐसे हैं Yeah. जो सेंटेंस पूरा नहीं होता। अभी और ये चीज़ नहीं, और भी देखिए स्कूलों में मैं खुद 2 बच्चों का पिता हूँ, तो मैं खुद देखता हूँ कि क्या चल रहा है। स्कूलों में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की बदतमीज़ियाँ मैंने देखी हैं, तो वो भी होता है। तो वो कंट्रोल जो है वो घर से ही आएगा। वो बच्चों पे जो कंट्रोल आएगा वो घर से ही आएगा और घर से ही लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आप सरकार पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि आज एक सरकार है, कल दूसरी सरकार है। अभी ये सरकार करेगी, दूसरी सरकार आएगी वो नहीं करेगी, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे अलाउ कर देगी। तो ये चीज़ें आपको खुद के घर से ही शुरू करनी पड़ेंगी, घर से ही ये चीज़ें खत्म करनी पड़ेंगी। Sarmi, we have seen such controversies in the past also. I think 7-8 years ago, and now it's again. So, is it a wake-up call for content creators, or after some time people are going to forget this and they will keep on doing this? See, I just read in the news that the parliamentary some committee has called Ranveer Alabadi and wants to talk to him. Now, and on Twitter, somebody's writing that some guy makes a crude joke and the police goes after him. This is a way to spook out young voters. Now, I feel you can't blow this up as the police is going after him, because then this guy is thriving on negative publicity. I feel Beer Biceps is a fellow who वो बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ डुबोना. Earlier he used to do some kind of podcast. Then he saw that okay, this whole Hindutva and Dharma and Sanatan, this is the BJP is in power, so let us maximize on this. So he's a very, very cunning fellow. Okay, he's a very. You want to say it is his true character? Yeah. He is very he has calculated his entire career move that way. Now this has come out, so immediately he says, I didn't know it's scripted, whatever. Like it's not scripted. It was a on the spot. Now we have to ensure that we don't give unnecessary importance to these people. The problem is that there are so many content creators who are doing bad stuff, but because of the algorithm or because of how the agencies really push their content, they are getting a lot of importance. I think the aim should be to kind of make these pieces of trash irrelevant, so that people realize eventually that these people actually don't read, they are not well versed with good content, or this is not humor how it's supposed to be. You can have clean humor. Like we were just talking about influence from the West में अभी भी अच्छे humorous shows होते हैं. We have seen movies like Death Becomes Her. We have seen great British shows. And होते तो यहाँ भी अच्छे हैं, जैसे तीन ताल वगैरह आप देखिए तो. Of course. So if mothers are making, like how Ritika said, if mothers are making 5-year-olds do Get Ready With Me reels, then the problem is in the mother. She wants the validation, she wants the views, she wants to pimp out her child to an overexposed world of social media. So content creators, this furor has to be directed in such a way that the content creators don't feel ki he's got so much of publicity, he's grown from here. The backlash should be so channelized that content creators feel ki we should maintain a certain decorum when we put out content. Instagram has become like a changing room where women are changing their clothes. Get Ready With Me is like this. They start off with the bare minimum, knowing that okay, this will get us views. So that, why would a creative forum like this become like a virtual changing room? So content creators have to understand where to draw the line. There has to be a sense of decorum. Freedom of speech doesn't mean you flout all kinds of public decency norms and put out stuff saying that, oh no, this is freedom of expression. This is a society. We can't let immorality or
crazy things run in a society, then it leads to collapse, right? The society will collapse. Means if you are walking into a family where the son is sitting and smoking up in front of the parents and talking in abusive language, is that an ideal family? What do you move ahead, where do you move ahead from? Haven't we seen movies like The Whale and all, where it's a complete breakdown of the family structure? It's a complete, it's depressing. It's You don't want to be in a space like that, right? You want to be in a space where children are learning good stuff, there is interesting conversations happening. Somebody watches a movie and talks to the parents saying that, I watched this movie, I found this a little problematic, but let's discuss. Parents are not going to stop their child saying कि नहीं आप वो नहीं दे सकते, वो ऐसा even if it doesn't align with them politically, still there is a space for arguments, there is a space for debates, there's a space for discussions. That is how a society forms up, no? But I also feel today's generation doesn't want to read. They don't watch good stuff. So where are we heading? ये प्रॉब्लम सोसाइटी में है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, एवरीथिंग हैज बिकम लाइक इंस्टेंट, छोटे छोटे कैप्शंस लिख रहे हैं, रील्स एंड शॉर्ट्स में दुनिया सिमट के रहा है। हाँ, मतलब छोटे छोटे कैप्शंस एंड दे थिंक ये वायरल हो रहा है, बस एवरीथिंग इज टू विजुअल, नो देयर इज नो mental or there is no intellectual churning happening, and that is very very scary. Women are I have seen women whose inner diva is coming out, and they are so happy that some stranger is giving them some heart comments. It's like validation ki itni wo that hai. You are something. Yes, ki some strangers writing some lewd comment and they're getting a kick by it, so the next reel is a lewder version of the previous reel. They are like they are pandering to the voyeuristic sentiments of strangers. So that is very scary. If content creators are moving in that direction, then how is Instagram, Twitter, YouTube, how is that how are these forums of positive change and positive learning? Ritika, Ajay ji, I want to understand it from both of you. You said that script likhi jati hai. I was going through some of the videos and I heard from Samay. He also said कि पंच की तैयारी होती है. तो जब everything is scripted, not random, तो फिर ये गाली क्यों उसमें डाली जाती है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि why to use vulgarity, why to use abusive language as a script. We have seen this in movies, but in stand-up comedy thing, मतलब how they are justifying it? एक तो है lack of vocabulary, दूसरी चीज है कि आप अच्छे पंच रोज नहीं लिख सकते. आप देखिए, कोई भी अच्छे से अच्छा राइटर होता है, वो एक समय लिखता है और उसके बाद सैचुरेशन आ जाता है. तो सैचुरेशन के बाद आपकी कॉमेडी या आपका लिखा हुआ पंच जो है वो लोगों को बोर करने लगता है. अब because comedy is very difficult to do. No, they are supposed to write good scenes, good comedy, that is fine. But अगर आप देखिए, अगर एक ही टॉपिक के ऊपर आप जैसे कोई भी हो, अगर एक ही टॉपिक के ऊपर आपके पास 4 राइटअप्स आएंगे, तो वो एक आप उसमें से चूज करोगे, लेकिन आप बार बार वही चीज सुनोगे तो आपको बोर लगने लगेगा. तो टू मेक समथिंग डिफरेंट, कि नहीं मुझे कुछ अलग ही दिखाना है और कुछ अलग करना है, फिर इसमें क्या होता है कि दैट एड समथिंग कॉल्ड इंस्टेंट, जो इंस्टेंट अटेंशन मिल जाता है. कि नहीं, भी एक चीज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने मुझे लाइक मिलते हैं मेरे पोस्ट के ऊपर. तो अभी इसमें होता क्या है कि कुछ नहीं है तो किक ये हो जाती है कि आज मैं जिसको फॉलो करता हूँ, जिसका मैं फैन हूँ, उसने आज किसी के बारे में ऐसा कमेंट कर दिया, तो जो जिससे उसको बुरा लग गया, मतलब उसकी बेइज्जती हो गई, वो मुझे अच्छा लग रहा है. तो पीपल
आर इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड कि उनको इंस्टेंट फेम भी मिल रहा है, इंस्टेंट किक भी मिल रही है, और अगर किसी की जो होता है ना कि किसी की निंदा में सुख मिल रहा है, तो कोई दूसरा किसी की निंदा बहुत बुरी तरीके से कर रहा है तो उसमें और ज्यादा सुख मिल रहा है। तो मेरे मेरे हिसाब से तो एक वही है कि अच्छे पंच बन सकते हैं, अच्छी कॉमेडी हो सकती है, अच्छे से सटायर लिखा जा सकता है, मीनिंगफुल सटायर लिखा जा सकता है, मीनिंगफुल कॉमेडी की जा सकती है विद अ मैसेज। कॉमेडी के साथ मैसेज भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक तो आपके पास वोकैब होना चाहिए, आपके पास ऑब्जर्व करने की पेशेंस होना चाहिए। लोगों में पेशेंस नहीं है, ना तो रील बनाने वालों में पेशेंस है, ना रील देखने वालों में पेशेंस है। कोई भी 10 सेकंड से ज्यादा स्क्रीन पर टिकना नहीं चाहता है, और लोग चाहते हैं कि मैं उन 10 सेकंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लें। तो वो जो रील बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसा उसमें डाल दें उस 10 सेकंड में कि वो वायरल हो जाए या उस पे यूजर अटक जाए। तो वो एक चीज है कि जो इंस्टेंट फेम जो है, जो क्योंकि देखने वाले के पास भी टाइम नहीं है, वो 10 सेकंड से ज्यादा देखेगा ही नहीं। आप अच्छा कंटेंट देखोगे, क्योंकि जब भी अच्छा कंटेंट होता है तो वो मैच्योर कंटेंट में थोड़ा टाइम लगता है। आप बिल्डअप करते हैं, उसका बैकग्राउंड बनाते हैं, बात पर आते हैं, बात को खत्म करते हैं, बात का कंक्लूजन निकालते हैं। तो लेकिन जो अभी वाला टाइम है इसमें नहीं हो रहा है, रील में नहीं होता। आपने 10 सेकंड देखा, 20 सेकंड देखा, उसके बाद खत्म, स्क्रीन स्क्रॉल हो जाती है इतनी देर में। हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग चाहे सिनेमा हो, अभी स्टैंड अप कॉमेडी हो, देखिए बुरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो अच्छे भी हैं। जैसे मान लीजिए जब ग्रैंड मस्ती बन रही थी, मस्ती बन रही थी, उस समय मालामाल वीकली जैसी मूवीज भी थी, चुप चुप के जैसी भी मूवीज थी। और अभी भी अगर कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि मैं इसमें बहुत देखता नहीं हूं तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे समय जैसे लोग हैं तो दूसरी तरफ और भी लोग होंगे जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे। हमारे पास ऋतिका भी है, कह लीजिए, जो अच्छे कंटेंट्स बनाती है। ऋतिका, इसी मुद्दे पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपके पास सब कुछ है तो वो क्या माइंडसेट है जो आपको खींचता है वल्गरिटी की तरफ, जो आपको खींचता है अब्यूजिव लैंग्वेज कंटेंट में यूज करने की तरफ? क्योंकि आप लोग भी लिखती होंगी, आप भी जब वीडियोस बनाती हैं तो आप भी लिखती होंगी ना कि मुझे क्या बोलना है। ऐसा होता है, मान लीजिए कि किसी के लिए हम लोग कोई सटायर व्यंग लिख रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऐसी लाइन मार दे कि बस जो वो देखने वाली वायरल हो ऑडियंस है ना, जाए। वो हंस दे, वायरल हो जाए। और वो कब होगी? जब आप कोई गाली दे दे। क्योंकि क्या होता है कि आजकल कंटेंट, अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर भी जब ऐसी कोई हरकत करता है तो वो वायरल होता है, लेकिन जब वो कुछ अच्छा बोल रहे होते तो वो उतना वायरल नहीं हो पाता। तो जब हम लोग लिखते भी हैं, सटायर या व्यंग लिखते हैं ना, तो मान लीजिए अगर 1300 1400 1500 वर्ड्स का लिखा है, तो पहले हम सब लिखते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग वो चीज हटाते हैं, क्योंकि हमें पता है, वो खुद को भी पता होना चाहिए ना कि वो क्या चीज है। अगर वो मान लीजिए 25 साल तक की ऑडियंस को तो बड़ा मजा आ रहा है वो चीज देखने में, ठीक है, मैं अभी गाली दे दूंगी, ये चीज वायरल हो जाएगी, लेकिन इससे पहले जितनी बातें करिए वो वायरल नहीं होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए वो चीज वायरल, ही वही कंटेंट हो रहा है जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। कंटेंट ही ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें ये सारी चीजें दी जा रही है। अगर कोई लीडर भी, कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा कुछ कर देता है, वो बहुत जल्दी वायरल होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को मसाला चाहिए, पीपल नीड एंटरटेनमेंट। कॉमेडी नाइट विद कपिल आता है, वो एक फैमिली एंटरटेनमेंट शो, जब तक वो सोनी तब तक फैमिली एंटरटेनमेंट। अभी जब नेटफ्लिक्स में भी आया, द कॉमेडी स्टिल बिहाइंड दैट लाइन, जो आप बोल रहे थे ना कि एक सीमा रेखा के पार ना जाकर, समय रहना कौन बनेगा करोड़पति में आए थे, तब तो उन्होंने कॉमेडी करी वहां पे, तब तो उनको गाली देने की जरूरत पड़ी नहीं वहां पे। लेकिन व्हाट टेक्स यू सो डाउन कि आप अपने शो में ऐसे कमेंट्स करते हैं, लोगों के अंग पे कमेंट्स करते हैं, मतलब बेड सेक्सुअल जोक्स मारते हैं, और इतने बदतर मार देते हैं कि वो सुनने लायक भी नहीं है। एंड तो अगर आप दे ये आर बोल रहे यूजिंग हैं इट लाइक, स्क्रिप्ट मतलब पहले लिखी हुई वो है, यू दिखता है, वो जो पैसे का एक नशा है ना, जो कम समय में आप कमा लेते हैं, वो दे आर ऑफरिंग, आई कैन पे यू 2 करोड़, आई कैन पे यू 1 करोड़ टू डू सच एक्टिविटीज। हाँ, वो यू जस्ट सॉ सच थिंग्स ना। आप ना पैसे की इज्जत कर रहे हैं उस प्रोग्राम में, और बच्चों को भी ये चीजें कन्वे कर रहे हैं कि भाई देख, इतने पैसे में ये हो जाएगा क्या? मतलब व्हाट इज दिस? आप उस चीज को कितने गलत तरीके से, आप उस चीज को अलग तरीके से बोल दो ना। मतलब नॉनवेज कॉमेडीज होती हैं, नॉनवेज जोक्स होते हैं, हम लोग मतलब अबव द एज ऑफ 18 एवरीवन इज अडल्ट,
सो अडल्ट कॉमेडीज होती है, लेकिन इतने गिरे हुए स्तर तक नहीं हो सकती है। आपको एक चीज, एक बाउंड्री देखनी पड़ेगी कि ठीक है। और गाली सब देते हैं, गाली सब सुनते हैं। आप बाहर ट्रैफिक में निकलोगे, सब एक दूसरे को गाली देते हुए निकल रहे होते हैं, तब आप किसको रोकोगे? ये चीजें सोचने वाली है। गाली देना वॉज नॉट एन इशू, बट जिस तरीके से आपने एक रिश्ते को वो रख दिया, कल के दिन तो आप भाई बहन के लिए कुछ बोल दोगे, कल के दिन माँ बाप के लिए बोला है, दादी पापा किसी के लिए भी बोल दोगे। तो ये चीजें सोचने वाली है कि एटलीस्ट आप जो भारतीय संस्कृति की चीजें हैं उनको ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म्स में या फिर ऐसे जो सर्कुलेट हुए हुए प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे उनको ऐसे ना ले जाए, भले ही वो एटलीस्ट जो भारतीय संस्कृति है। एक बार वीरदास शायद वहां एक बाहर का उनका प्रोग्राम था, व्हेन ही सेड दैट 11 टू इंडियाज, जहां पे ये होता है और लड़कियों का बलात्कार भी होता है, जहां पे वो होता है, देन ही इज गिविंग दिस इमेज टू द पब्लिक कि इंडिया में एक्चुअली यही होता है। तो यहाँ पे हर तरीके का कंटेंट है की चीजें, आप तो फिर लोगों का देखने का नजरिया बदल रहे हो ना। अगर समय रहने का शो, मान लीजिए मेरे दोस्त है, 10 में से 6 दोस्त देखते हैं, ठीक है, दे आर वेरी इजी टू इन्फ्लुएंस द अदर पीपल टू, दे डोंट नो अदर अबाउट एनीथिंग। मतलब वो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से आते हैं और मनोरंजन के लिए घर में आकर ये देखते हैं। तो ये चीजें सोचने वाली हैं। कॉर्पोरेट लाइफ से अगर आप इतने ज्यादा सड़ चुके हैं, पक चुके हैं, तो मनोरंजन के लिए दूसरे भी तरीके हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। लोगों ने हॉबी रखना छोड़ दी है। पीपल हैव स्टॉप्ड गोइंग इनटू स्पोर्ट्स और डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो ये सारी चीजें प्रमोट करने के लिए एक्चुअली गवर्नमेंट काम तो कर रही है। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने यूथ के लिए बिल्डअप में इतना काम करा, लेकिन असल में आज जो सोशल मीडिया ने उसको एकदम काउंटर दिया है, वो चीजें देखने लायक हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 students, 40 students must be knowing about this content. Only 10 who are into other things, they will not be diverted by this. So this is the Sunny thing. wanted to say something on this. See, like I was saying that the kind of content available on social media, on OTT platforms, it's mediocre because people also don't have the choice. There should be better content available. There should be means like there should be some regulation that and people should be encouraged to read, to watch better stuff. If you flood the, see, this is a soft power, okay? Soft powers influence people much more than constant lectures and this. Cinema or social media are such soft powers that they can influence the youth much more than anything ever will. And because people don't have that retention quality now, they will watch a 1-minute reel and they will think, acha yehi hai. I'll give you an example. Vogue magazine did a cover, Vogue or some other magazine did a cover with Suhana Khan. Suhana, right? Her name is Suhana, Shah Rukh's daughter. It was a cover story where, they got very fancy photo shoots done with her. Okay. The copy started with, Suhana is a gem of a person. Now, I have handled cover shoots because I write in lifestyle magazines. I was the bureau chief of a lifestyle magazine. A cover shoot gets done in 3-4 hours because a celebrity will not give you that much time. Okay. She is being made to dress up like a doll, very fashionable, makeup artists are coming, she's posing before the camera and all. She will obviously throw a bit of attitude, but she will also present a perfectly poised picture of herself because this is the media she is interacting with. A very good picture of her needs to be presented. 3 घंटे 4 घंटे में आप कैसे किसी के पर्सनालिटी के ऊपर ऐसे कमेंट कर सकते हो कि वो जेम ऑफ अ पर्सन है? Have you lived with her for 24 hours? Have you lived with her for 1 month? Have you seen her bad sides? No. So I think the youth, so when people read that and they started thinking that, okay, Suhana is like this. Now, media and social media, they present a picture which is very superficial. People have to be poked and said that, look, ye na dikhawa hai. Aisa hota nahi hai. Social media has become a platform. Social media is a platform where a lot of things are made to look
a certain way. People are dressing up their homes and doing photo shoots in corners where that corner looks perfect. Not necessarily the entire house is like that. So the expectations of people of that audience is becoming like, अच्छा इनका house ऐसा है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं. They are not seeing that a picture is being presented. There is the gap between real and real is just becoming so wide, but the perception is like nahi yahi hai real. So that needs to be broken down some way. Influencers are really I was maximizing on listening that. to one of the recent interviews of Jaideep Allahabad, and he was also talking about this, that now the way, the quality of content we are giving to our viewers, somewhere it is affecting children's mind. Of course, Because see, even because some a section of the same industry are also we can you see on social media, Instagram pays people who suddenly become viral, and they have a certain Instagram, YouTube, all these places. So these people are like, एक podcast करके अगर viral हो जाते हैं या एक video लगा के viral हो जाते हैं, so हमको पैसा मिलेगा. Where is the skill formation? Where is the talent formation? Who is going to, if our youngsters are becoming so brainwashed so as to become these social media celebs or influencers or whatever, because they think the money is rolling in, then they are not putting their energy and their time into skill formation, talent formation, education. Then who is going to become an engineer? Who is going to become a doctor? Who is going to go into the army? So this is how civilization collapses, because you are putting everything cannot be about money. Everything cannot be about paise mil rahe, so I'll dress up a certain way and I'll present this, so more money will come in. It's becoming viral, so more money. It's only becoming a game of money. You're saying things because you know that, okay, if this goes viral, I'll get money. You are doing something because you know that, okay, if I get so many likes, I'll get the money. Everything is about commercial now. That needs to, I think it's a very, very scary situation out there. अजय, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस वीडियो को हटा दिया. They have removed the video from the platform. Do you think that this is enough, or the government need to think, they need to do more to curb such thing to not happen in future? करना तो पड़ेगा. गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा. आप जरूरी नहीं कि आप करें, आप सिर्फ एक इंटेंशन भी दिखाएंगे तो चीजें सुधर जाएंगी. अब जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एक्चुअली किसी को ले जाके जेल में ही बंद करे तो चीजें सुधरे. सिर्फ इंटेंशन दिखाने से ही चीजें सुधर सकती हैं. आपको सिर्फ कुछ ऐसे रूल्स बनाने होंगे, और फॉलो ना करने वालों का आप देखिए, अब इतना हुआ है. अब चुनावों में आपने देखा होगा कि बड़े आसानी से बड़े यूट्यूबर्स थे, उनको डीप्लेटफॉर्म कर दिया गया. उनका फाइनेंशियल जो रास्ता था बंद कर दिया. अब बंद करा दीजिए, अब 2 का बंद करा दीजिए. आप देखिए तीसरे दिन में अब जेल में मत डालिए. So you want to say डालिए. there should be some fear in the minds of that content creators. Absolutely. If on beyond the border, if we cross the line, government is going to act against us. बिल्कुल कराइए, बिल्कुल करना चाहिए. आप डीप्लेटफॉर्म कराइए. आप डीप्लेटफॉर्म नहीं करा सकते, उनका फाइनेंशियल रूट रोकिए, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि यस, फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. लोग ज्यादा देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जो ये कहते हैं सोशल मीडिया पे वायरल होकर हमने इतना कमा लिया, इतना बड़ा घर बना लिया. कुछ ट्रक ड्राइवर्स के ऐसे वीडियोस बहुत आते हैं, मैंने देखे हैं कि वो कोई ट्रक ड्राइवर है जो बनाते हैं, बोलता है कि हमने इतना बड़ा घर ले लिया. वो सिर्फ खाना बनाता है ट्रक में, और तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी 1-2 जगह गलती की है. जैसे आपको याद होगा, एक बच्चा था, बचपन का प्यार वाला, बड़ा ही मतलब ठीक है, वो बच्चा था, उसने गाया, वो वायरल हो गया. लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उसको एनकरेज किया, चीफ मिनिस्टर ने उसको अपने घर बना लिया. तो उससे क्या हो रहा है कि और भी बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि नहीं, हमें भी बनाना है. बच्चे नहीं हो रहे तो उनके पेरेंट्स हो रहे हैं, अभी एक बुंदेलखंड की एक बच्ची है, झांसी की है, कहाँ की है, वो वीडियो बनाती है, बुंदेलखंडी में बात करती है. बुंदेलखंड की बच्ची है, जो अब सीएम तक पहुंच गई है.
सीएम तक पहुंच गई। अब उससे क्या हो रहा है? उससे ये होगा कि दूसरे पेरेंट्स को लगेगा कि मेरे बच्चे को भी करवाओ। और हाँ इसमें फिर क्या होता है, पेरेंट्स के दिमाग में This ये is नहीं the रहता peer कि pressure we were talking about. या यस, इसमें फिर ये नहीं रहता है कि वो ये नहीं सोचते कि हम अच्छा बना रहे हैं, बुरा बना रहे हैं, बच्चे का टैलेंट दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, बच्चे में टैलेंट है या नहीं है, कुछ भी। आप कुछ भी अच्छा, गंदा, बुरा, बच्चा अच्छा लग रहा है करते हुए, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उस कंटेंट में बात है, नहीं है, टैलेंट है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज में जो भी ट्रेंड चलेगा, आज हम उसका वीडियो बनवा हाँ। देंगे, बच्चे से डाल देंगे, इन अ होप कि कभी तो वायरल हो जाएगा। you तो know, and वो also the government has to understand that they have to employ people in agencies who don't identify such opportunistic content creators and appreciate them or applaud them or give away prizes. Ranveer Allahabadiya has been called by the government and been handed over a prize, right? Now when he's being recognized by the government, people are getting influenced. They will feel like, oh, that means he's doing something good. Now very few people will actually follow his work and realize that, oh, this one is an opportunist. So the agencies that the government employs also need to kind of work harder to identify better content creators who deserve to be recognized than just give anybody. There was this lady who was applauded and she was awarded something. She went and made such anti-Hindu comments later on in some reel, and then people realized that she's not as informed that she pretends to be. It's just that she goes viral, and hence she was picked up. Now government se kitne bade leaders have sat on a podcast with Ranveer. Now this is legitimizing him, no? And then you cannot go back and say इसने ऐसे कमेंट किया। तुम शुरू से उसको इतना भाव दे रहे हो, उसको तुम इम्पोर्टेंस दे रहे हो, you have made him relevant. This is a thing that government needs to do better. So we heard from our panelists, and they have spoken in one voice that such content should be criticized and that there should be some regulations. Thank you viewers for joining us today. Please do like and subscribe our channel for more such content. Thank you.